Between quiet mornings, unfinished goals, and small hopeful thoughts, this new year feels like a gentle pause before a new beginning. Hi, I'm Sunidhi, and if you are feeling little stuck, this video is for you. 2025 gave me many lessons. Not everything went the way I imagined. Some dreams stayed incomplete, and somewhere along the way, I started putting a little too much pressure on myself. When I wrote 2026 for the first time, it came with a question mark. Not because I was unsure of life, but because I was ready to grow differently this time. Time keeps moving and we keep learning even when we don't realize it. Everyone talks about new year, new me, but honestly, I don't want to become someone else. I just want to become a better version of myself, slowly and honestly. Believe. This word really stayed with me. Believe in small steps, believe in consistency, believe that calm progress matter more than rushed perfection. The first week of this year wasn't very smooth for me. I felt stuck, a little low, and pressured by my own expectations. So instead of ignoring it, I decided to sit with it and reset. I started planning my days, journaling my thoughts, clearing my mind, and creating small routines that actually support me. Not to change my whole life overnight, but slowly bring back peace and direction and clarity. And if you are watching this and feeling the same, please know you are not alone. We all are learning at our own pace. This year, I am choosing calm over chaos and progress over perfection. This is my reset, my fresh start. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. If you are new to my channel, I'm Sunidhi. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And happy New Year, guys! This is going to be my first vlog or video of 2026. So, in this video, I'll talk about bit recap of 2025 and what I am expecting in 2026 and what is my plan. And also, the update is that I have made my vision board for the first time and I'm going to print that out from Blinkit because मैंने उसको डिजिटली बनाया था. आई थॉट कि मैं उसका वॉलपेपर या कुछ लगा के कहीं पे रखूँगी, बट आई रियलाइज़ कि वो गैलरी में कहीं पे ऊपर छुप जाएगा. एंड विजन बोर्ड बेसिकली होता ये है कि यू डिसाइड फ्यू थिंग्स लाइक गोल्स एंड ऑल, तो उसका पिक्चर्स उसमें लगा देते हो और कहीं पे अपने डेस्क के पास, अपने बेडरूम में, और सम पीपल ऑल्सो पुट इट इन बाथरूम. सो जहाँ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ लगा सकते हो. तो बार बार देखने से ना आपको एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि व्हाट इज़ योर गोल इज़, आपको किस चीज़ के लिए काम करना है, कैसे करना है. सो इतने तैयारी के साथ कभी मैंने विजन बोर्ड बनाया नहीं है जितना मैंने इस साल बनाया है. लेट्स सी, फिंगर क्रॉस कि मैं इस साल क्या क्या कर पाती हूँ उसमें से. अभी मैं उसको प्रिंट आउट के लिए ब्लिंकिट पे दूंगी. मैंने एक दिन और दिया था बट बहुत देर हो गई थी रात में, मतलब 1-2 बज गए थे, तो आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था. Today is 10th of January. Literally, I have not recorded a single day from like this is my first day of recording. मैंने तो एक पिक्चर भी नहीं ली है 1st of January से लेके अभी तक. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग दैट गुड. आई वाज नॉट इन दैट स्पेस दैट कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं फ़ोन उठाऊँ और रिकॉर्ड करूँ. सो या आज सैटरडे है, छुट्टी भी है एंड मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी. There are lots of update, lots of things which I want to share, which I want to talk to you guys, which is about adding few habits in my life. And मतलब पिछले
10-12 10 क्या, पिछले 8-9 दिन से मैं इसी पे थी। लाइक आई वाज़ मैं अपना लाइफ पटरी पे ला रही थी बिकॉज़ इट्स न्यू ईयर, इट्स 2026 ऑलरेडी एंड आई थॉट दैट आई एम नॉट putting that effort making my life better. So I was just like कुछ चीज़ें थी जो मैं मुझे ऐड करनी थी लाइफ में। मुझे उसको अपने एक पटरी पे लाना था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन उसको पहले प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद उस बारे में बात करती हूँ। एंड मैं अभी तक तो कंसिस्टेंट हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई विल जस्ट शेयर माई रूटीन, व्हाट habits I have added in my life and what change I can see. Okay, let's do one thing. I'll talk. I don't want to talk about the whole year, what happened about month and blah blah blah. But I'll tell you the best thing, one best thing which happened 2025 and one worst. So I'll talk about the worst first. So the worst thing it happened is like I lost my grandmother in April 2025, and that was the worst thing happened last year. And because I never thought about that. Obviously, no one does. And that was the very and I thought कि मैं उस फेज से लाइक 1 महीने 2 महीने बाद कि मैं निकल गई हूँ, बट कुछ लोगों का हील करने का प्रोसेस अलग होता है, मेरा बहुत ही अलग है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक मुझे मैं वो क्या कहते हैं ना, कुछ चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट तो हो जाती हूँ, बट हील करने में बहुत टाइम लगता है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो बाकी का साल वो हील करने में ही चला गया आई गेस। और द बेस्ट थिंग विच हैपन इज़ दिस यूट्यूब चैनल। आई नेवर थॉट, मतलब अगर कोई 2025 के स्टार्टिंग में जनवरी में मुझे कहता कि तुम अप्रैल में अपना यूट्यूब वीडियो बनाओगी और जून में तुम्हारा फर्स्ट व्लॉग जाएगा, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एंड ऑल्सो एक और अच्छी चीज़ हुई थी, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की वजह से ही मैंने आईफोन ले लिया, बिकॉज आई एम नॉट द फैन ऑफ दैट गैजेट कि मैं मतलब वो होता है ना कि मुझे अभी नया लॉन्च हुआ है, ये फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन चाहिए, या ये डिवाइस चाहिए, या कुछ चाहिए। आई एम नॉट दैट पर्सन। तो मुझे ऐसा होता है कि अगर नीड है तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ नीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। एंड मैंने वो व्लॉग भी बनाया था, उसमें भी मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे फ़ोन दिलाया था, बिकॉज़ यार जब मैंने स्टार्ट ही कर दिया है यूट्यूब चैनल, और वीडियो क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए, और बस, और एक फ़ोन की भी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने सोचा कि यही ले लेते हैं। तो हाँ, ये 2 चीज़ें बेस्ट हुई हैं लास्ट ईयर, क्योंकि यूट्यूब चैनल के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि क्योंकि मेरे को बहुत सालों से मुझे था कि मुझे स्टार्ट करना है, बट आई वाज़ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। लेट मी टेल यू, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम कि अभी अगला साल आएगा, न्यू ईयर आएगा, 1 जनवरी आएगा, मंडे आएगा, तब हम वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू फील लाइक जस्ट स्टार्ट, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज करना, यूट्यूब चैनल, अपना कुछ हेल्दी खाना, या कुछ भी हो सकता है। Past few weeks I realized कि I am just trying to put everything in that jar of the perfection. I'm trying to put like कि perfect ही होना चाहिए, otherwise नहीं होना चाहिए, even in vlogging also. But I think in this vlog I'm going to talk very unfiltered. This is going to be very unfiltered vlog. मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी हो चुकी है। मेरी आँखें देखो बाबा रे बाबा, कि ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि मुझे उठे हुए हो गए हैं 3-4 घंटे। आई थिंक ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने भी चाय नहीं पी है, तो मैं जल्दी से चाय और पास्ता बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम गाइज। So that was the quick recap of 2025, and yeah, I thought of and last year ना, मतलब लास्ट ईयर ठीक ही था, मतलब चला गया, मुझे पता भी नहीं लगा मुझे पता भी नहीं लगा, लिटरली पता नहीं लगा मतलब क्या हो रहा था। मैं उठ रही थी, ऑफिस कर रही थी, सो रही थी, खा रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, लाइक वही डेली रूटीन। आई थिंक कुछ कुछ होते हैं साल ऐसे, या कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे
स्लो हो जाना चाहिए लाइफ को, थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। एंड सो या आई टोल्ड यू कि दैट आई थिंक दैट वाज माय हीलिंग फेज आई गेस। एंड यस, आई एम फुली हील्ड गाइस। पिछले 9 दिन से मैं यही कर रही हूँ। सो द हैबिट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई स्टार्टेड जर्नलिंग। मैं बहुत टाइम पहले करती थी, मतलब ऐसे करती थी कि बीच बीच में मंथ में एक बार पूरे मंथ का कुछ लिख लिया। बट नाउ आई स्टार्टेड डेली जर्नलिंग और इट चेंज्ड अ लॉट गाइस। मतलब मुझे लगता है कि जो मैं लोगों का ऐसा सुनती थी ना, पॉडकास्ट, कोई सीरियल में या कहीं पे कोई कुछ बोलता था जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो, इट विल चेंज यू। मुझे लगता है जर्नलिंग इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत लोगों को सुबह उठ के जर्नलिंग करना पसंद है, बहुत लोगों को शाम में पसंद है। सो आई लाइक एंड ऑफ द डे मैं जर्नलिंग करने के बाद सो जाती हूँ। तो मैं अपने पूरे दिन का जो भी रहता है, मुझे क्या फ़ील हुआ, क्या कैसा हुआ, कैसा दिन था, तो मैं सारा कुछ लिख देती हूँ। और उसके बाद आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील होता है। लाइक मतलब मुझे लगता था जर्नलिंग इज़ नॉट अ माई, मतलब मेरे लिए नहीं है या मैं नहीं कर सकती। बट आई ट्राइड एंड आई फेल्ट लाइक इट्स रियली गुड। आई थिंक मतलब सबको ट्राई करनी चाहिए जर्नलिंग। ऑल्सो ये तो मैं हमेशा से ही करती थी। आई हैड दिस डायरी ऑफ टू डू लिस्ट, लेट मी शो यू। सो आई हैव दिस डायरी ऑफ टू डू लिस्ट एंड इट्स रियली प्रिटी, पिंक पिंक। तो मैं इसमें टू डू लिस्ट का जो भी मेरा प्लान वगैरह रहता है कि अगले दिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लाइक अगर मुझे एक्सरसाइज भी करनी है या मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है या क्या करना है या क्या खाना है, सो मैं इसमें लिख लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है जब एंड ऑफ द डे वो बॉक्स को आप ऐसा चेक करते हो, दैट आई डिड दिस। तो अभी प्रोग्रेस में है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आई थिंक ओवर नहीं लिख देना चाहिए, जितना आप कर सकते हो उतना ही करना चाहिए। मैंने अभी ये सीखा है। तो अभी वो मेरा टू डू लिस्ट थोड़ा शॉर्ट होता जा रहा है, क्योंकि ऑफिस के बाद जितना टाइम मिलता है अपने लिए, 2-3 घंटे 4 घंटे, उसमें जो भी आपको जैसे एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है, तो जो भी मेरा दिन का प्लान रहता है मैं वो लिख लेती हूँ। एंड दिस हैबिट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट। मुझे लगता है कि सारे लोग करते ही होंगे, बट मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने स्टार्ट किया है अभी एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। तो अब मैं, जैसे मुझे कोई पूछेगा कि जर्नलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या टू डू लिस्ट का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, सो आई कैन टेल नाउ। तो हाँ, फ़ायदा तो होता है, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका पूरा दिन ऐसा सॉर्ट हो जाता है। क्योंकि यू कांट कीप एवरीथिंग इन माइंड ना, कि कभी कभी होता है कि हमें ये काम करना है और फिर हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना कि हम भूल गए, यार दिमाग से ही निकल गया। तो इफ़ यू हैव दैट टू डू लिस्ट, तो एक बार गो थ्रू कर दो, अच्छा अच्छा ये चीज़ें रह गई, या ये चीज़ें करनी है अभी। तो आई थिंक इट्स गुड थिंग। तो या, so there are 2 to 3 habits or 4 to 5 habits which if you include in your life, you will see better version of yourself. And in that I will tell you, the first thing is journaling, second thing is making list of your like to-do list, and third is like exercising, eating healthy. I think that will change something, that will change something। मतलब ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसा पूरा बड़ा कुछ हो जाएगा, बट दैट विल चेंज समथिंग एंड इन अ बेटर वे, हमेशा। सो लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2026 में कुछ तोप मारूंगी। तो पता नहीं, आई डोंट नो, द स्टार्ट, ये साल का स्टार्टिंग ही ऐसा हुआ कि मैं एकदम ऐसा साइलेंट मोड में चली गई। आई डोंट नो, शायद अभी ये फेस चलता है, तो अभी मेरा वो साइलेंट वाला फेस चल रहा है कि मेरे को पता नहीं कैसे ऐसा शांति सी चाहिए। एंड येस, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेडिटेशन अगेन। मैंने पिछला पूरा साल नहीं किया, मैं उसके पहले करती थी। कुछ हैबिट्स तो हैं जो मैंने कर करके छोड़ दिए।
थर्ड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ अ की गाइस। मतलब इस साल का मेरा एक मोटिव ये भी है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी करने में कंसिस्टेंट रहना है। तो जैसे कुछ हैबिट्स मैंने इंक्लूड की हैं जो सबको करनी ही चाहिए। मैं कुछ ऐसा अलग काम नहीं कर रही हूँ, बट ये कुछ चीज़ें जो मैंने इंक्लूड की हैं जो गायब थी मेरी लाइफ से, उसमें मैं कंसिस्टेंट रहूँ। सो दैट इज़ द प्लान फॉर 2026। ऑल्सो मुझे क्या, हाँ, विजन बोर्ड अभी तो आएगा, सब अभी आएगा प्रिंट आउट होके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। तो इस साल का मेरा एक और प्लान है विच इज़ ट्रैवल मोर। मतलब ट्रैवल करना ही है, वो चाहे मैं 1 दिन की 2 दिन की ट्रिप लूँ, पर मेरे को मेरा प्लान है कि मैं जाऊँ। लेट्स सी कि मैं कितना घूम पाती हूँ। सो आई वांट टू लर्न फ्यू स्किल्स, तो मैं उस पे भी फोकस कर रही हूँ कि एंड ऑल्सो आई वांट टू जॉइन डांस क्लास। नहीं डांस क्लास तो आई वांट टू डांस मोर। मतलब मैंने एकदम ही छोड़ दिया यार, पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। मैं बोल रही हूँ ना, लास्ट ईयर मेरा ऐसा हीलिंग फेज में चला गया। एंड ऑल्सो यहाँ ये बोलते हैं ना लोग, न्यू ईयर न्यू मी। आई डोंट नो दैट इज़ अ थिंग। मतलब कोई अपने आप को ऐसा साल चेंज होते ही पूरा पेंट करके पूरा लाइफ अपना स्क्रैच से तो स्टार्ट करेगा नहीं। सो आई थिंक कि पूरा साल नया ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान ही नया हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो होता है ना, दैट इज़ बुलशिट। आई विल टेल यू कि न्यू ईयर न्यू मी, उस प्रेशर में बिल्कुल भी मत पड़ो। वॉट एवर यू आर, try to add few more skills to be a better version of yourself। हर एक साल जैसे जैसे आपका लाइफ में ऐड होगा, आई रियलाइज कि उस साल में यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब कुछ तो सीखोगे। जैसे लास्ट ईयर से मैंने सीखा कि आई वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट, तो मेरे को जो चाहिए था या जो भी मेरा गोल था वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं वो सीख लेके इस साल आई हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो पिछले कुछ सालों में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, यू कांट रिमूव दैट। मतलब वो ऐसा लाइफ से एकदम गायब नहीं हो जाएगा। तो उसको आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना होगा। पॉजिटिव चीज़ क्या आप लेके आ सकते हो, क्या आपने सीखा है, क्या आप जो चीज़ें आपने कुछ गलतियाँ करी हैं तो उसमें क्या सुधार ला सकते हो। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। और ये भी जो न्यू ईयर का जो भी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि हर साल आप कुछ ना कुछ सीखोगे और उसको आगे फॉरवर्ड करके जाओगे। बिकॉज आपको कुछ चीज़ों में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे कुछ होगा, तो आपको वो चीज़ें आपके साथ आगे जाती जाएंगी। तो ऐसा न्यू ईयर न्यू मी कुछ भी नहीं होता है। एंड डोंट लुक फॉर द परफेक्ट टाइम और मंडे और दिस 1 जनवरी और समथिंग। चलो अब मैं पास्ता बनाती हूँ, और पास्ता बनाते बनाते बात करते हैं। ऐसी कुछ और बातें मुझे याद आएंगी तो मैं बोलूँगी। आज मैं ज्ञानी बाबा बन गई हूँ। तो मुझे मतलब बात करने का मन था गाइस आप लोगों से। एंड ऑल्सो वी आर अ फैमिली ऑफ 127 पीपल, एंड आई रियली ग्रेटफुल फॉर यू गाइज जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। कुछ लोग हैं जो देखते हैं बट फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ फॉलो कर लो मेरा वीडियो, और मेरे मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लो। एंड यस, सो अभी मैं इस साल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी। और एंड ऑल्सो देर इज़ नो बिग रेजोल्यूशन ऑफ दिस ईयर। वही सारी चीज़ें हैं। टू आई जस्ट वॉन्टेड टू बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा पूरा चेंज नहीं कर सकती, बट या आई कैन बी better. So, yeah, guys. So, okay, so let's go and make pasta because I'm really hungry और मुझे चाय की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे वापस नींद आ रही है। मैं बोलते बोलते सो जाऊँगी। ओके ओके। ऐसे गाइस, शादी का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी बीच में कुछ टाइम, एक दिसंबर स्टार्टिंग में था, उसके बाद फरवरी से शादी सीज़न स्टार्ट है और मैं शादी में जा रही हूँ। सो एक्चुअली वो शादी इन लॉस के उधर है। सो लेट्स सी कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ या नहीं, क्योंकि बड़ा अजीब सा हो जाता है यार ऐसे
क्योंकि सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है कैमरे पे आने पे कि मैं जाऊँ और उनके मुंह पे बस कैमरा लेके खड़ी हो जाऊँ. लेट्स सी कि मैं क्या ब्लॉग करती हूँ, बट I'll try to make that mini vlogs या get ready with me. और जो भी हो पाएगा, अगर वहाँ पे सब सही रहा तो फिर मैं व्लॉगिंग भी करूँगी. मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने. भाई मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ कि मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ, और तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरा पास्ता उबल के इसकी क्या बैंड बजी है. लेट्स सी कि क्या बनता है आज. तो मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तेज बोलने का मन नहीं कर रहा है. आई जस्ट रियलाइज कि मैंने लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया उसमें मैं सेम टी शर्ट पहनी हूँ. एंड यस ऑफ कोर्स मेरे पतिदेव की है. आई लाइक इट यार. ये ऐसा अच्छा लगता है यार, कंफी ढीला ढीला सा सही रहता है. सारे कपड़े चुरा लूंगी मैं. आप लोगों से बात करके मुझे एनर्जी आ रही है गाइस. मुझे अच्छा लग. मैं डांस का स्टार्ट कर दी हूँ. पास्ता रेडी है. ये देखो काफ़ी क्रीमी बना हुआ है और इसमें है सारी हेल्दी चीज़ें. एंड इट्स वेरी टेस्टी. तो ठीक है, मैं ये जल्दी से ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को. बाय. ओके गाइस, तो मैं अभी पास्ता खा ही रही थी और मेरे पास ये पैकेट आ गया ब्लिंकिट का. इतना बड़ा पैकेट जिसमें सिर्फ इतना बड़ा विजन बोर्ड आया है. पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया. ये कुछ मेरे से वो साइज में थोड़ा गड़बड़ हो गया सेलेक्ट करने के लिए, और ये ऐसा छोटा सा फोटो जैसा आ गया है. कोई नहीं, मैं इसको अपने बेड साइड पे कहीं पे तो पेस्ट कर दूंगी ताकि ये मेरी नज़र में रहे. एंड येस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ऐसा विजन बोर्ड प्रॉपर बनाना है, बिकॉज आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल कि मतलब मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि मेरा कोई ऐसा विजन बोर्ड देख लेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा. आई थिंक मतलब सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं शेयर करने के लिए उनके गोल्स एंड वॉटेवर, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कोई को किसी के नज़र में आए और फिर वो देखेंगे अच्छा तुम्हारी ये गोल है, तुम्हें ये अचीव करना है, अच्छा तुम्हें यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है. कैन डू वन थिंग कि आपका जो भी प्लानर है या जो भी डायरी है, आप उसमें एक गोल काइंड ऑफ लिख सकते हैं जो आप जो भी डेली यूज़ करते हैं, या फिर डिजिटल बना के वॉलपेपर लगा सकते हैं जो मैं पहले किया करती थी. और प्लानर में भी पिक्चर्स कट करके पिंटरेस्ट से निकाल के आप वहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं. सो मतलब ऐसा कुछ एक A4 साइज़ में आप सिंपली अपना जो भी चीज़ें हैं गोल को, वो भी अपना 1 2 3 करके प्रायोरिटी करके और वैसे आप लिख सकते हैं. सो या इट्स नॉट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर ऐसा विजन बोर्ड मतलब ऐसा पिंटरेस्ट से निकाल के पेस्ट करके बनाना ही ज़रूरी है. Guys, you can do one thing guys, you can pause this video here and you can comment below कि आपने विजन बोर्ड बनाया है या आपने गोल्स अभी तक डिसाइड किए हैं या नहीं किए हैं. सो नेक्स्ट ईयर हम आगे वापस रिव्यू करेंगे हमारा विजन बोर्ड कि हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या प्लान किया था, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या अचीव करना रह गया है, और वो हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करके ले जाएंगे. सो या यू कैन जस्ट पॉज हियर एंड कमेंट बिलो गाइस. इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कमेंट योर गोल्स ऑल्सो. आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल कि मैं अपना विजन बोर्ड आप लोगों के सामने ऐसा दिखाऊं. मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप लोग भी वहाँ पे लिखोगे. बट येस, यू कैन राइट दैट आई हैव मेड माई विजन बोर्ड, और यू कैन जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड वी विल रिव्यू दिस नेक्स्ट ईयर. And yeah, so all the best guys, and
आई होप कि आपके सारे विशेस पूरे हों इस साल के। सारे जो भी विजन बोर्ड में आपने ऐड किया है, जो भी आपने गोल बनाया है, वो आप लोग अचीव करो और हम साथ में करेंगे गाइज। सो यस, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस ईयर। मतलब स्टार्ट तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट हमारा स्टार्ट अभी हो रहा है। मैंने वीडियो अभी स्टार्ट किया है, तो या तो हमारा न्यू ईयर आज से स्टार्ट है। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। अभी मैं जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने। अगर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी तो मैं उसका क्लिप भी ऐड कर दूँगी। एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मतलब आई जस्ट टोल्ड यू कि आई वॉज नॉट फीलिंग दैट, आई वॉज नॉट इन दैट स्पेस कि मैं बात करूं या शेयर करूं। एंड यू कैन सी कि मैंने वीडियो कहाँ स्टार्ट किया था और मैं कैसे एंड कर रही हूँ। आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक नाउ, और मैंने चाय भी पी ली है तो मेरी नींद भी खुल गई है। तो या सो दैट्स इट गाइज। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, और yeah, all the best guys, and happy new year again, and take care of yourself, and love you, lots of love guys, lots of love. Bye, take care, see you next time.